Hello everyone, and today I welcome you all in another session of Micro to Remain Micro series. The topic of bloodstream and cardiovascular system infection. The topic is enteric fever, and we are done with enteric fever part 1, and this is enteric fever part 2. In part 1, we have seen the disclaimer alert, introduction, and etiology and related classification. In this part, we'll be focusing mainly on the virulent factors, pathogenesis, and epidemiology. And stay tuned because in next section we will be watching the lab diagnosis, the treatment, and the NTS, that is non-typhoidal salmonella, right? So yes, so in part 2, as I've told you earlier, that we'll be watching the virulence factor, the pathogenesis, and the epidemiology. See, in brief, I'm telling you, virulence factor मैंने आपको पहले भी बताया था. मान लीजिए मुझे किसी की बॉडी में जाकर के इन्फेक्शन करना है, तो मैं अपना हाथ, पैर, नाखून, दांत, क्या चीज़ से इन्फेक्शन करूँगा उसकी बॉडी में जाकर के, कैसे उसकी बॉडी को हार्म पहुँचाऊँगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू वायलेंस फैक्टर. देन पैथोजेनेसिस सी, इफ़ यू टॉक फॉर पैथोलॉजी ना, पैथोजेनेसिस में आता है कि डिजीज़ कैसे कॉज हो रहा है. हमारे यहाँ पैथोजेनेसिस के अंदर होस्ट, ट्रांसमिशन, clinical features, these are of importance. And in the end of today's session, we'll be watching the epidemiology. See, in epidemiology again, we have some headings. Like not all headings are important in epidemiology. Like you are not supposed to learn कि भाई हरियाणा में कितना है, यूपी में कितना है. Not that, but you should know कि epidemiological, what are the carriers, right? क्योंकि if you remember that there was this lady, Malin Mary, right? Malin Mary, or you call her as the Typhoid Mary, she was the cook, right? So these things are important to know. ठीक है, चलिए. Firstly, we'll be discussing what are the virulent factors. ठीक है, तो अभी उसके अंदर एंटीजन रहते हैं. ठीक है, साल्मोनेला के पास 3 एंटीजन रहते हैं. कौन कौन से? O एंटीजन, H एंटीजन एंड VI एंटीजन. O एंटीजन का नेम क्या होता है? दैट इज नोन एज सोमैटिक एंटीजन. हमने हमारी सेल वॉल वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज O एंटीजन. H एंटीजन इज अ फ्लैजेलर एंटीजन. We have already discussed in our video of flagella, right? Next is our VI. Now what is VI? VI is the virulent antigen. ठीक है, VI is the virulent antigen. Actually it is a capsular antigen. ठीक है, capsular antigen, right? टाइफॉइड के ऊपर में, साल्मोनेला टाइफी के ऊपर में जो कैप्सूल होता है, ये उसका एंटीजन है. Now see, when it was named like this, it was thought to be virulent, but ठीक है, it was thought to be virulent, but it is not. It is less immunogenic amongst the three. ठीक है, तो अब भाई परेशान तो इतना कर नहीं रहा, तो इस चीज़ को किस चीज़ के लिए यूज़ करें? तो VI को स्टार्टिंग में हम लोग ने यूज़ किया एज अ डायग्नोसिस, ऐसा ट्राई किया, क्वेश्चन किया. सो कैन वी use it for diagnosis? No. Why? Because see, it is less immunogenic. It is less immunogenic, and because it is less immunogenic, the antibodies are also produced less. So you cannot use it for the diagnosis purposes. Then why it is used? It is used for vaccines. ठीक है, and also it is an indicator of poor prognosis. Now what does this mean? अगर आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा भी वायलेंस VI नहीं है, तो याद रखिए वो टाइफाइड बहुत खतरे वाला है. क्यों? ऐसा क्यों? देखो कैसा रहता है, इफ दिस इज अ बैक्टीरिया, तो मान लो इसके पास में 5 एंटीजन है. ठीक है, अगर एक भी VI का होता है तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, 4 प्रेजेंट हैं. ठीक है, 4 जगह से गोलियां चलेंगी, बंदूकें चलेंगी, है ना? एक भी VI. अब सोचो एक भी VI नहीं है तो गोलियां कितनी जगहों से चलेंगी? 5 जगहों से. तो वायलेंस इंक्रीज हो जाती है. सो इफ देयर इज अ एब्सेंस ऑफ VI, यू से दैट वायलेंस will be increasing, right? Now next is very important. What is the difference between the somatic and the flagellar antigen? The somatic antigen, as I've told you, we have discussed in the section of cell wall. It is a
पार्ट ऑफ सेल वॉल लिपोपॉलीसेकेराइड, राइट। LPS लेयर रहती है सेल वॉल में। फ्लैजेला, एज आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज फ्लैजेला मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, तो वही फ्लैजेलिन प्रोटीन इट सर्व एज अ H एंटीजन, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस O एंटीजन की जो एंटीबॉडी रहती है ये जल्दी आ जाती हैं, और H एंटीबॉडी जो है वो थोड़ा सा लेट आता है, ओके। सो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज O एंटीबॉडी क्योंकि जल्दी आती हैं और डिसअपियर भी जल्दी हो जाती हैं, तो अगर O बॉडी डिटेक्ट हो रही है, O एंटीजन डिटेक्ट, O एंटीबॉडी डिटेक्ट हो रही है, तो दैट मीन्स इट इज अ रीसेंट इन्फेक्शन। बट अगर H एंटीबॉडी है सो इट इज अ कन्वालेसेंट स्टेज, मतलब बहुत टाइम हो चुका है इन्फेक्शन हुए को, तो ऑन दैट बेसिस आपको ट्रीटमेंट ध्यान रखना पड़ता है, राइट। नाउ वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, O एंटीजन जब एंटीबॉडी से जाकर के रिएक्ट करेगा तो वो चौकी क्लम्प्स बनाता है, ठीक है। एग्लूटिनेशन धीरे होती है एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एग्लूटिनेशन इज 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब आज जब आपने 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर किया तो आपको धीरे धीरे कुछ एग्लूटिनेशन दिखी, और वो भी कैसी थी? चौकी क्लम्प्स। तो आपने वहाँ से डिसाइड कर लिया कि अरे इसमें तो O एंटीजन है, ठीक है। बट वही अगर आपने 55 की जगह 37 डिग्री सेल्सियस पे किया और एग्लूटिनेशन जल्दी जल्दी हो रही है और फ्लफी क्लम्प्स बन रहे हैं, क्या बोला मैंने? 37 डिग्री सेल्सियस पे किया और जल्दी जल्दी एग्लूटिनेशन है और फ्लफी क्लम्प्स हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर H एंटीजन है, ठीक है। तो उसी बेसिस के ऊपर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज O एंटीजन हो या H एंटीजन हो, वो तीनों में होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन साल्मोनेला, टाइफी, पैराटाइफी A, पैराटाइफी B, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट व्हेन यू विल गो टू योर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, दीज आर समवट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नो, राइट। क्योंकि कभी कभी हमें स्ट्रेन देखना होता है कि कौन सा स्ट्रेन आया है, तो हम इन्हीं एंटीजन्स के बेसिस पे भी डिस्कस, राइट। पैथोजेनेसिस, नाउ आई विल गो थोड़ा सा फास्ट। पैथोजेनेसिस, ट्रांसमिशन क्या है? नाउ सी, नेम ही है उसका क्या, एंटेरिक फीवर। तो ट्रांसमिशन कैसे रहती है? फीको ओरल रूट, ठीक है। कैसे जाता है? फीको ओरल रूट से, ठीक है। तो एंटेरॉन में जाएगा, दैट मीन्स कहाँ जाएगा? ये GIT के अंदर जाएगा, ओके। स्पेशली द पीपल हु ईट मोर ऑफ आइसक्रीम्स, राइट, उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। इन्फेक्टिव डोज इज 10⁻³ to 10⁻6 बेसिलाई, right? Clinical features, very important. If you can clearly see here, you can witness some rose like spots, okay, rose spots you call it as. And if you see there is a buffy coat which you can witness over this tongue, right? So this is a coated tongue, but everything is okay. हमें तो एग्जाम में लिखना है ना, and एग्जाम में I don't remember how to say it, so I have a mnemonic, a beautiful mnemonic that says टाइफस, मतलब टंग कैसी है? येलो कोटेड, ओके, दिस इज नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, यू विल सी पंच्ड आउट अल्सर, सर्जरी में जाकर के पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अल्सर, ओके। देन H, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, ओके। 4th, U, ugly red spots, and 5th is your very important thing, that is a step ladder fever या step ladder remittent fever, मतलब फीवर होता है फिर नीचे आता है लेकिन नॉर्मल नहीं होता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नॉर्मल लाइन, तो फीवर आ रहा है, कम हो रहा है, बट नॉर्मल नहीं हो पा रहा, ओके। नाउ epidemiology, who is the host? Man is the only host. Transmission we have discussed earlier. Typhi to paratyphi, very important. See, paratyphi A upon typhi का अगर आप रेशो देखेंगे तो that is approximately 4:1, okay. Carriage, very important. Why it is important? देखो कैरियर्स दो तरीके के होते हैं, या तो वो जो कि फीकल रूट से इन्फेक्शन फैलाते हैं, या फिर वो जो कि यूरिनरी रूट से, ठीक है, यूरिनरी रूट से इन्फेक्शन फैलाते हैं। बेसिकली इफ योर बैसिलाई इज मल्टीप्लाइंग इन किडनी,
you say that infection will be through urinary route, and if they are multiplying in gallbladder, you say it will be by fecal route. Now इसी basis पे we have two types again, temporary as well as chronic carriers. Temporary carriers वो रहते हैं basically जो कि temporary basis के ऊपर like for 3 months by fecal route they spread the infection, but chronic ones are those जो कि 1 year, in fact more than 1 year, and through urinary route they are going to spread the infection. Okay, and typhoid Mary is very important example, और अपनी लाइफ टाइम में लगभग 1300 केसेस इसने फैलाए हैं. तो जितना इसने टाइफाइड फैलाया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप उतना ही हमारा चैनल जो है वो फैला दीजिए. Make sure that you like, share and subscribe to our YouTube as well as Telegram channel. Thank you so much.